Good morning to all. Myself, Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is acid-base titration. So, first we have to understand what are acids and bases. Now, acid-base titration, or we can say that neutralization titration, is based upon the chemical reaction between an acid and a base. Titration involved acid and base are extensively used in the analytical control of many commercial and industrial products. Now, acid-base titration is generally based on the acid and bases, okay, and the reaction between the acid and base. So, we have to understand what are acids and what are bases. Now, strength of acid and base. A solution of HCl in water is strongly dissociated. That is, its degree of dissociation is high. So it is called a strong acid. And the acetic acid is poorly dissociated. Its degree of dissociation is low. Hence, it is a weak acid. And same is for NaOH. It is strongly dissociated, so it is a strong base. So, strong acid, strong bases. What are strong acid, strong bases? What are weak acid, weak bases? We are going to understand. So, for that, there were three theories of acid-base titration. Now, the first one is Arrhenius theory. Now, according to the classical theory of Arrhenius, dissociation of an acid, it is for the dissociation of an acid. Now, according to this theory of dissociation, an acid is a substance which when dissolved in water give H plus ion, and a base is a substance which on dissolution in water gives OH negative ion. Arrhenius ने कहा एसिड वो है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो अपने जितने भी उसके पास H प्लस प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है वो सारे प्रोटॉन वाटर में दे देगा, वो एसिड हुआ। बेस कौन है? बेस वो है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके पास OH है, वो अपने सारे OH नेगेटिव आयंस वाटर को दे देगा, वो है एसिड एंड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल HCl, H plus Cl negative, it is strongly dissociated, मतलब पूरा का पूरा HCl में जो H है वो सारा वो वाटर को दे देता है, उसने सारा अपना H वाटर को दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उसने स्ट्रांगली अपना H जबरदस्ती वाटर को दे दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग है। नाउ CH3COH, एसिटिक एसिड, H plus CH3CO नेगेटिव, ये वीक एसिड है क्योंकि ये पुअरली डिसोसिएट होता है, ये थोड़ा कंजूस है। इसने क्या किया, कुछ H अपने पास रख लिए, कुछ H वाटर को दे दिए, ठीक है। तो इसने कंजूसी करी, इसने स्ट्रांगली वाटर को नहीं दे पाया, ये स्ट्रांग नहीं है, ये अपने H जबरदस्ती वाटर को नहीं दे पाया क्योंकि इसके पास पावर कम है, ये पुअरली डिसोसिएटेड है, तो ये कौन हुआ, वीक एसिड हुआ। वैसे ही NaOH, Na प्लस OH नेगेटिव, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने OH अपने जितने भी जबरदस्ती वाटर को दे दी कि नहीं तुम ले लो मेरे OH, तो वो स्ट्रॉन्ग है, उसने दे दिए। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, उसने क्या किया, कंजूसी करी, कुछ अपने पास OH रख लिए और वो कोशिश भी कर रहा है वाटर को देने की, तो वाटर पावरफुल हो गया, वाटर ने कहा हमको नहीं लेना है, तो वो बेचारा वीक है, वो जबरदस्ती दे नहीं पाया, तो ये वीक बेस है। Now Arrhenius was a Swedish chemist. He had put forward a theory of acid in the 1880s. 1880 में Arrhenius ने एसिड और बेस की थ्योरी पुटअप करी थी, ईयर 1880। Arrhenius was a Swedish chemist here. So उन्होंने ये कहा कि acid is a substance that dissociate in water to form H plus ion. वाटर में डिसोसिएट होके H plus ion बनाते हैं। वाटर क्या है, H2O है, एक H और मिला तो वो क्या हो गया, H3O प्लस हो गया, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। So Arrhenius defined a base as a substance that dissociate in water to produce OH ion, मतलब वाटर में डिसोसिएट होके वो अपने OH आयन को
दे देता है। वो डिसोसिएट होता है वाटर में तो OH आयन को वो प्रोड्यूस करता है, वो हुआ बेस। बेस यानी OH, एसिड यानी H। एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन को कंटेन करता है एंड प्रोड्यूसेस H+, जो H+ प्रोड्यूस करता है वो H वाटर के साथ मिलकर, वाटर के पास कितने H है? 2 है, H2O, एक H और गया, क्या बना? H3O+। तो वो H वाटर के साथ मिलकर जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। A strong acid is a water soluble compound that completely dissociated to give H3O+ आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो H3O+ आयन देता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। इट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। A weak acid is a water soluble compound that dissociate only partially, producing few H3O+ ions। जो आधा ही डिसोसिएट होता है और कुछ ही H3O+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। Now, see, a strong acid is a water soluble compound that completely dissociate। अब ये है H और Cl, ओके। ये H जो है ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए हैं वाटर में, यहाँ पे पूरा वाटर है, ये H पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो गए, हर H अलग हो गया HCl का, तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए, है ना। सब तरफ बिल्कुल एक पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं हमको। सो इट इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। वीक एसिड की बात करते हैं, अगर हम वीक एसिड देखें, H2CO3 की बात करें, अगर हम ये वीक एसिड है तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए आप, ये यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के हैं ये H+ आयंस हैं, ये H+ आयन हो गए हमारे, है ना, और ये HCO3 है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ कंबाइन है, मतलब कुछ ही, हमको तो H से मतलब है, कुछ ही H+ आयंस जो है बाहर निकले, तो ये वीक बेस है जो कुछ H+ आयन को मतलब प्रोड्यूस करता है, वाटर में प्रोड्यूस करता है, बाकी को रख लेता है, ठीक है। सो एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स एन OH negative ion is a base. Now limitations, there were limitation of Arrhenius theory. The acid base and bases must be in aqueous solution, that is water. This prevent the use of other solvents like benzene. अब limitations क्या? Arrhenius theory की कुछ limitations हो गई थी। क्या? इनका ये कहना था कि एसिड और बेस मस्ट बी इन एक्वस सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होने चाहिए। मतलब हम तो यही बोल रहे हैं ना, जो वाटर में डिसोसिएट होकर H+ आयन दे वो एसिड, और जो OH दे वो कौन? बेस। किसमें? वाटर में। हमने किसकी बात करी? एक्वस की बात करी। तो इसकी लिमिटेशन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक ही, मतलब सिर्फ वाटर को यूज कर सकते हैं अरेनियस के अकॉर्डिंग, एसिड और बेस में। बेंजीन वगैरह को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा अरेनियस की लिमिटेशन है। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज हाइड्रोनियम आयन। Arrhenius thought that an acid give off H+ ion in solution. H+ ion दे देता है। H+ ions are protons and cannot exist independently. वो तो प्रोटॉन है, इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, वाटर के साथ मिलके वो हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करते हैं। H+ किसने दिया? एसिड ने दिया। वाटर के पास क्या था? H2O था, उसने वो H और ले लिया, H3O+ हो गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो हमारे अर्हेनियस थ्योरी में आई। इसके बाद फिर ब्रॉन्स्टेड-लरी थ्योरी आई है एंड देन लेविस थ्योरी आई है, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्हेनियस थ्योरी, ओके। सो अर्हेनियस इज अ स्वीडिश scientist and he said that acid is a substance when dissolved in water gives H+ ion. एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, H+ आयन देता है। बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। बेस, एसिड और बेस वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, या पूरी तरह से हम पे बिखर जाए। हाँ, ठीक है, एक तरीका ये भी बता देगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन?
स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाए, उसका हर H अलग 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 हो जाए वाटर के अंदर, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसने जबरदस्ती अपने सारे H वाटर को दे दिए। वीक एसिड कौन? वीक एसिड वो जो थोड़ा कंजूस है, उसने कहा मैं सारे H अपने नहीं दूंगा, कुछ H तो मैं अपने पास रख लूंगा, ठीक है। और वो वीक इसलिए भी है क्योंकि फिर उसने सोचा कि नहीं चलो मैं भी पूरे H दे देता हूं, मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाता हूं। उसने देना चाहा वाटर को, पर वाटर ने लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो वो स्ट्रांगली जो है वाटर को देना चाहता था, वाटर ने H नहीं लिए, इसलिए वो वाटर से वीक हुआ, इसलिए वो वीक एसिड है जो पूरी तरह से अपने H नहीं दे पाया। वैसे ही हम बात करें NaOH की, Na+ OH नेगेटिव, इसने जितने भी अपने NaOH इज अ बेस वाटर में डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव आयन, इट प्रोड्यूसेस OH negative ion. So when NaOH is dissolved in water, it dissociates into Na+ and OH negative, and NaOH is a strong base, वो strong base है, तो उसने सारे OH जबरदस्ती वाटर को दे दिए, ले लो करके, और वो स्ट्रॉन्ग था, वाटर वीक था उस केस में, तो उसने वाटर को लेने पड़े, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, उसने कुछ OH उसके पास ही रह गए, उसने कोशिश करी कि मैं अपने सारे OH वाटर को दे दूं, पर वो नहीं दे सका, वाटर ज्यादा पावरफुल था, उसने कहा नहीं मुझे नहीं लेने अब तुमसे, कुछ ले लिए उसने, ठीक है। तो क्या हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन हो गया? वीक हो गया, तो इट इज अ वीक बेस। एसिड एंड बेसिस, 7 pH हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से अगर हम लो जाएंगे, 0 to 7 अगर हम बात करें तो वो एसिड है, और 7 to 14 बात करें हम तो वो बेस होते हैं। 7 से 14 की तरफ जो pH को मतलब जिनका pH होता है वो बेस होते हैं, और 7 से नीचे की अगर हम बात करें मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इनकी बात करें 1 2 3 4 5 6 तक, तो ये हो गए हमारे एसिड। 7 न्यूट्रल है, आसपास जो है वो एसिड और बेस है, 7 के लो में एसिड है, 7 के अप में बेस है, तो HCl कहाँ आएगा? वो तो एसिड है, तो 7 से लो में, मतलब HCl एसिड है, इसका pH क्या होना चाहिए? 7 से कम होगा, तो ये कम है, ठीक है। NaOH कौन है? बेस है, बेस का pH मतलब 7 से ऊपर की साइड जाएगी, 8 9 10 11 12 13 14, तो NaOH का pH उधर जाएगा, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। वी हैव 3 थ्योरीज, तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहां पर दिख रहा है HCl है, HCl पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए हैं कंप्लीटली, तो ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्जुगेट फॉर्म में ही रह गए, पूरी तरह से H हमको नहीं मिला है, कुछ H तो इसके साथ कंपाउंड के साथ कुछ H रह गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुए, तो ये वीक एसिड है। ऐसा ही सेम बेस का बना सकते हैं, यहाँ NaOH करते हैं तो कंप्लीटली हो गया, तो स्ट्रॉन्ग है, NH4OH नहीं हुआ तो वो वीक है। So this is about the Arrhenius concept of acids and